So welcoming all of you. This is the session that we have organized not precisely to learn the content matter of geography. This is the session to give you an outlay. This is the session to give you an understanding of approaching your agenda, of approaching your ideological development, preparing yourself as a wholesome personality towards developing out, towards generating your perspective to be a future bureaucrat. We all are very strongly attracted. We are very strongly focused towards. There is a requirement for me to attain significant job prospect as conducted by UPSC. But are we actually prepared mentally, psychologically, and also intellectually? Because if this examination is all about highest level of competitive examination, it certainly cannot go with what is called ad hoc approach of preparation, ad hoc approach of learning, ad hoc approach of action. It looks in for something very defined, something very consistent, something that has to be wholesome. And mind it, I always say, something which is extremely customized. Because if you are not following that customization, you will be somewhere lacking behind your competitors. Because what works for one, I need to be very clear, may not work for me. It is certainly not about being discouraged. It's about identifying my own challenges, whether it is internal or external, and my own strengths, whether it is internal or external. You have to be very cautious in planning out your journey, inspiring yourself with everyone, but definitely not getting on to the work that is repetition, aping down the work done by others. You have to take your own course of action. So take the charge. This approximate 1 hour that we'll be devoting on will be essentially oriented towards giving you a purview, giving you an agenda, giving you a support of what exactly is the key secrets to success. And these key secrets to success is definitely going to be all yours. It is not going to have anything in the repetitive session. So I begin here welcoming all of you. This is going to be an informative session. I for sure give you that assurance. And for all those who are new to this channel and is not aware of, I expertise in geography and is in this UPSC training field for 23 years now. And my area of action, starting from my first center till date, has been geography. I don't take the leaps and bounds in the professional growth at the cost of my students' interest. My work ethics are very different than what you can justify. Of course, it's a professional field, and I'm also in a professional field, but it doesn't go with that kind of doing. So let us get on straightforward to the approach that we have to discuss, the orientation that you have to justify, to precisely chart out your course of action, to precisely chart out your approach of understanding that has to be justified with this preparation, right? So we are getting on to our agenda that I identify for this particular session. And if I have to specify the agenda, you need to understand that there is a massive difference. There is a very significant difference that goes between what is called, and I certainly want to attempt it here, mindful versus mindful. For your UPSC dream, you are required to be second, not the first. You have to be very clearly justifying
that your approach and strategy of working should be clearly in clear perspective here, not pulling yourself, not filling your mind with all the crugs or all the distractive edges. So you coming on to Delhi, or you decide to prepare out for civil services examination, the first and foremost thing that should be there in your mind is the clear vision. What exactly we do? I have come up to Delhi. I want to take up the preparation of civil services examination. I'm doing optional class in the morning session. I'm doing GS classes in the evening session. Afternoon is, vacant time for me. So I should take into consideration additional class, and I can take that additional class as, say, I'm picking up ethics, I'm taking up essay. Now, what that is doing? That is actually making your mind full, F-U-L-L. And that mind full is by default decreasing your performance and work efficiency. We all work hard. And all of you very clearly say, we all are working hard. And we are very perseverance in our approach of preparation. We are consistent with our approach of preparation. But why we are not getting the positive result? You might be blaming it to your luck, but I very clearly believe luck favors those who favors themselves. In the competitive examination, element of luck is not ruled out. Let us agree to this. Element of luck cannot be ruled out because you might be missing out in a point minor factor. It's agreed. But you need to be very clear that are you on the right path? Are you clearly defined of your objectives and goal? Objectives and goal must be in long and short, both the terms. Don't pull yourself apart. That let me just complete all the classes and then I'll go and do it myself. It doesn't happen that way. You need to be very clearly understanding that the things are required to be mobilized on the perspective of your approach of writing, your approach of reading, that has to be your own. And it must go hand in hand. Means if I'm doing classes of essay, I must do justice by inculcating the tips and tricks of essay writing and get on to my own work done towards it. It certainly cannot be that you are filling up the register pages and you are done. मेरी class हो गई और मेरा काम खत्म हो गया. UPSC preparation में इस तरह का approach detrimental, self-interest killing होता है. So you have to be very clearly defined that you justify your approach of preparation by charting out, I'm not burdening myself. I'm taking ease of the preparation. Rushing to kabhi bhi mat karo. That you have learned or you have attended one session and you have got inspired to rush up with that. No, apply it to me also. Don't rush up. Always take on the account of mobilization of professionalism. That is what is required. हम इस समय एक ऐसे माहौल में हैं, हम इस समय एक ऐसे कोचिंग बिजनेस के माहौल में हैं जहां बहुत मुश्किल हो जाता है ये जज करना कि मुझे कहां जाना चाहिए और कहां नहीं जाना चाहिए. I always use the term, you are in the flashlights right now. आप जब जितने ज्यादा flashlights में होते हो, आप अपना आंखें चौंधियाती हैं, आप अपना ट्रैक मोशन भूल जाते हो या भटक जाते हो, and that is where you eventually sit and regret. So एक अपना course of action chart out करें, compete only and only with yourself, decide your course of action. Every running, every teaching faculty has got his her own expertise. हर faculty अपने हिसाब से अपने students को groom कर रहा है. सबकी अपनी अपनी weaknesses and strengths है. But आपको ये समझना है कि मेरे लिए कौन सा compatible faculty होगा. Who is going to be my mentor? And what will be the sequence by which I'll be selecting itself? So from this first aspect, the agenda that I have decided to use the term for is that you need to be mindful, intelligent, thoughtful, not cluttered up with the load of information.
And that is where you have to mobilize out the specific goal points. You have to specify the charting references that will give you the understanding of this is going to work in my favor and this is going to work in my favor. जब भी आप कोई भी एक डिसीजन लेते हैं, जब हम आपको कह रहे हैं बी क्लियर विद योर विजन, सो लुक इन फॉर स्पेशलाइजेशन, डोंट लुक इन फॉर इराटिक फॉरवर्ड्स, लुक इन फॉर स्पेशलाइजेशन. आप किसी भी पैरामीटर पर आप एक पॉइंट को जज करें. Do I determine? There was, this is a very good example. I'll not name the candidate. The successful candidate of the declared UPSC examination could not clear prelims for the last 2 attempts and now is a rank holder. Not a geography student, not my student. I'm just very strongly moved by his word, so I'm utilizing it. And because I don't have the copyright, so I'll not be naming the individual. 2 attempts could not qualify prelims, now is a rank holder. And as it is like everyone is attracted towards him, this interview, that interview, that interview. And that fellow came up with one expression, one statement, and that somewhere shook me to the core. That yes, this is what we need to actually understand and realize. And that was, for the last 2 years, whatsoever efforts I was taking, because it was not converting into result, I was fooled to the utterest order, with my existence actually not making any difference to anyone. And now, as I have attained success and I have got higher rank in examination, I have suddenly become intellectual to the glory, and everyone wants to take the tips and tricks from me. This is the success, and this is the attraction of the success. If that student, if that successful candidate would not have been confident, would not have been consistent, would not have been with the self-poise, would he be in the final list? Because we very readily rule out. हम बहुत जल्दी किसी को rule out कर देते हैं, ये खराब है, ये अच्छा है. It doesn't go that way. You have to be very clearly defined. And जब आप clearly defined होते हो, जब आपको बहुत important justification देना होता है, shortcuts के लिए कभी मत भागो. So when I say clear your vision, I want you to be very clearly justifying 2 things in your brain. एक हमने लिख दिया यहाँ, दोबारा से लिख देते हैं. Be mindful and definitely don't look in for shortcut. It's a long process. आप एक अटेम्प्ट में सक्सेसफुल हो जाओ, दिस इज वेयर देयर कैन बी द एलिमेंट ऑफ लक. आप एक अटेम्प्ट में सक्सेसफुल हो जाओ तो भी तो 1 साल लगाया आपने. प्रोसेस ऑफ एग्जामिनेशन भी तो पूरा 1 साल है. आपको इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में हर दिन ऐसा लगता है कि वेयर आई एम गोइंग, व्हाट आई एम डूइंग, एम आई ऑन द राइट ट्रैक, एम आई ऑन द रॉन्ग ट्रैक. आपको हर दिन अपने आप को रिवाइवल देना होता है. उसके लिए आपके दिमाग में एक बहुत क्लियर परव्यू होना चाहिए. एंड व्हाट इज दैट क्लियर परव्यू? दिस इज द टर्म गोल्स दैट आई आस्क यू टू टेक फर्दर एज देयर. I target to be in Lal Bahadur Shastri National Administrative Academy. My goal is this. If my goal is this, then what should be my approach? What should be my orientation? What should be my strategy of preparation? I have charted out 6 defined purview, commonly applicable to all of us who are attempting to prepare or are preparing for last few years, have just begun with our civil services preparation. Please be clearly informed that continuity in the learning process and improvement कब आएगी? जब आपको पता चलेगा ना कि जो चीज आप लर्न कर रहे हैं, is it giving you the desired direction? Is it giving you the desired thought process? Is it giving you the desired content or knowledge that you are required to apply eventually in your answer writing?
अब इंटरव्यू पैनल या इंटरव्यू सेशंस में तो thankfully we are having the retired bureaucrats who are taking your mock interviews. We are having retired high place officials who are taking your interview. We are having the retired personals from UPSC itself who are taking your interview. So yes, you are hearing it directly from the horse's mouth. Interview preparation as the final step, where how do you mold up your presentation? You are getting the clear expertise advice right there, and that is what you have to apply almost immediately. Because you take interview training, you take interview sessions when you qualify me, so it is just from the corner. पर वहां तक पहुंचने के लिए आपने अपने आप को कौन सी लर्निंग प्रोसेस दी है? Learning process has to be continuous and it must be always put to scrutiny. I need to improve. I need to improve so that I'm not repeating the mistake that I did in the previous test, in the previous attempt, in the previous assignment writing, anything. I can be at any level of preparation. हमने पिछली बार NCERT का एक चैप्टर पढ़ा था, तो I just took the leapfrog approach. I was jumping across the paragraphs, believing कि भाई NCERT तो teenagers बच्चों के लिए है. I am preparing for civil services examination. मुझे क्या जरूरत है इतनी डिटेल्स में इसको जस्टिफाई करने की? लेकिन then I realize ना NCERT कितनी important है, वो time and again UPSC के क्वेश्चन पेपर में प्रूव होता है. तो it is learn continuously and improve. Improvement is in your thought process. Improvement is in your strategy. कि आपको जजमेंट भी तो लेना पड़ेगा ना, तो हाउ विल यू जज कि आपका प्रिपरेशन या जो आप लर्न कर रहे हो वो राइट पाथ पर है कि नहीं? उसी को जज करने के लिए यू हैव टू टेक अप द रेफरेंस ऑफ बीइंग पॉजिटिव, रेजिलिएंट एंड टेकिंग केयर ऑफ योर वेल बीइंग. आप बोलोगे ये तो अचानक से कुछ आउट ट्रैक पॉइंट्स हो गए. हम कहते हैं नहीं, क्योंकि जैसे आप कंटिन्यूअसली लर्न करके इंप्रूव करने की कोशिश करोगे, उसके लिए एक सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आप अपने आप को कंसिस्टेंट रहने के लिए एनकरेज करें और प्रैक्टिकली कंसिस्टेंट रहेंगे. एंड दैट इज पॉसिबल ओनली व्हेन आई एम साइकोलॉजिकली एंड फिजिकली फिट. आई एम टेकिंग केयर ऑफ माय वेल-बीइंग. नो वन आस्क्स अस टू डू सो. आपको क्या कहा जाता है? भागो, एक बैग लेकर इस कोचिंग, दूसरा बैग लेकर दूसरी कोचिंग, और तीसरा बैग लेकर तीसरी कोचिंग. इसलिए आपको बताया अपनी प्रोसेस को चार्ट आउट कीजिए. यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. आप ही तो परफॉर्म करोगे. अगर आप अपनी लर्निंग प्रोसेस में इस कंटेंट को ऐड नहीं करो, दैट आई हैव टू टेक केयर ऑफ माय वेल-बीइंग, माइंड इट, यू विल बी ultimately losing out. So when I say learn and improve, so you have to learn to take care of your well-being, and you need to learn to stay positive and resilient, because you have made yourself expose out into one of the very challenging competitive examinations. If you have to face it, you have to learn. And that is the reason these 3 strategies are placed on one side of my agenda of the preparation. And as I get on to the other side, I take reference of calculated risk must be taken. When I say calculated risk, इसका मतलब क्या है? रिस्क लेने से या रिस्क नहीं लेने से क्या डिफरेंस होता है? What is the meaning of risk? Meaning of risk again is absolutely related. It doesn't go with one specific meaning. Risk का मतलब है I have decided to come to Delhi to prepare. How it is a risky affair? It's a risky affair because I am on my own completely. I have never been in that domain. I'm coming out to Delhi to prepare for civil services examination, and my studies have been completely sidelined because I'm struggling to meet my ends. रात में खाना कहाँ से आएगा, बुक्स कहाँ से लेनी है, इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, ब्ला 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 ब्ला. ये हुआ एक एलिमेंट ऑफ रिस्क. दूसरा एलिमेंट ऑफ रिस्क होता है यू हैव टू बी वेरी क्लियरली जस्टिफाइंग द स्टेप्स दैट यू आर टेकिंग विद गट फीलिंग. गट फीलिंग का मतलब क्या होता है? आपके पास सिलेबस है, सबके पास है,
आपके पास आपका कंपटीशन लेवल का जस्टिफिकेशन है, lakhs of students sit for this examination. अब अगर हम मोटिवेशनल थॉट के बारे में बात करें तो हम कहेंगे कि भाई जो रिस्क लेता है ना, जितना बड़ा रिस्क लेता है उसकी उतनी बड़ी सक्सेस है. आई डोंट बिलीव इन दैट. इसलिए आई हैव सेलेक्टेड द टर्म कैलकुलेटेड रिस्क. दैट रिस्क इज that you are moving out of your comfort zone. Come on, you are preparing for civil services examination. हम में से 90% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अपना ऑप्शनल, अपना पेरेंट डिसिप्लिन नहीं लेते. 10% स्टूडेंट हैं जो अपना ऑप्शनल, अपना पेरेंट डिसिप्लिन लेते हैं. ऐसा क्यों है? बिकॉज यू ट्राई टू टेक अ कैलकुलेटिव रिस्क. You take a risk that this particular optional is going to give me helping hand in what I cannot choose out. And that is the reason geography like optional has got such evergreen tag attached to it. ये है calculated risk. Calculated risk ये भी है कि आप justify करें कि आपको कितना टाइम चाहिए. अब नया ट्रेंड शुरू हो गया है कि 5th और 6th स्टैंडर्ड से we are having the mushrooming coaching business कि भाई 5th और 6th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को आप अट्रैक्ट करो towards being a bureaucrat. Come on, this is something which is absolutely unethical. Forget about practicality. हम बेस बुक्स पढ़ेंगे ही नहीं तो हम अपना बेस तैयार कैसे करेंगे? कोई भी बिल्डिंग अपनी रेजिलियंस तभी डेवलप करती है जब उसका फाउंडेशन स्ट्रांग होता है. और ये सारी चीजें जो हैं वो कभी भी अपनी वैल्यू को खोती नहीं है. आपको ये चीज को बहुत क्लियरली समझना है. आपने जब कैलकुलेटेड रिस्क को अटेम्प्ट किया ना, तो इस कैलकुलेटेड रिस्क का मतलब क्या होता है कि आप अपने हिसाब से अपना अप्रोच और अपनी टारगेट को तैयार करो. आप सबसे इंस्पिरेशन लीजिए, आप सबसे लीजिए, सक्सेस स्टोरीज सुनिए. जिन स्टूडेंट्स ने सक्सेस अटेन किया है, चाहे वो टॉप रैंक पर किया है चाहे बॉटम रैंक पर किया है, success is definitely very difficult in this examination and salute to them. They are identified to be the bearer, torch bearer of what resilience and what perseverance is all about. So we inspire ourselves with them, but we have to take our own risk. And this risk is to go about with your knowing the foundation, आपके pros cons. अब इसी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है ना कि बेसिक किताबें पढ़ो. हम कहते हैं कि ऑप्शनल की क्लासेस लो तो फिर टेक्स्ट बुक मत पढ़ो. तो आप तो कह रहे हो कि टेक्स्ट बुक पढ़ो, आप कह रहे हो मत पढ़ो. पॉइंट बताने की कोशिश ये कर रहे हैं कि बेसिक रीडिंग्स तो चाहिए. आप जब तक ये नहीं समझो, आपने अपनी ग्रेजुएशन खत्म करी नहीं, फर्स्ट ईयर में आप आ गए यूपीएससी की कोचिंग के लिए, आपने अपने लिए क्या अवेयरनेस क्रिएट की है? नहीं की है. आप अपने आप को फ्रॉम स्कूल, अ वेरी प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट, टू कॉलेज में लेकर आते हैं जहां आपको एक सॉर्ट ऑफ एक्सपोजर मिलता है, वेर यू ट्राई टू ग्रूम योरसेल्फ एज एन इंडिविजुअल. You start taking your responsibility, you start justifying this is good and this is bad, because now you are officially into the adult age group. आप उस समय अपने आप को वो एक्सपोजर नहीं देकर सीधे आ जाओ कि मैं यूपीएससी की तैयारी करूं, मेरी ग्रेजुएशन भी पूरी नहीं हो, I am not mentally mature, I am not mentally prepared to basically come up for this competitive examination. कभी सोचकर देखा है कि सक्सेस रेट इतनी कम क्यों है? इसलिए ही कम है क्योंकि आप भेड़ चाल में जाते हो. You are just willing to follow the herd. Come on, be rational, be intelligent, decide out on your own course of action, and at least do the basic things before you come up here. ग्रेजुएशन को अगर मिनिमल क्राइटेरिया रखा है तो किसी रीजन से ही तो रखा है. यू हैव टू जस्टिफाई कि मुझे ग्रेजुएशन लेवल तक तो अपनी बेस प्रिपेयर करनी है. इट कैन नॉट बी दैट आई एम ग्रेजुएशन करते करते यूपीएससी की तैयारी करते करते क्रैक कर जाए. आप बोलोगे करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं. फर्स्ट अटेम्प्टर्स की सक्सेस रेट बड़ी है, पर फर्स्ट अटेम्प्टर ने क्या सीधा ग्रेजुएशन के बाद ही क्लियर करा? उस डेटा को भी चेक करें. और फर्स्ट अटेम्प्टर्स अगर क्वालिफाई करे तो इस साल का रिजल्ट देख लो, वी हैव गॉट 5th अटेम्प्टर आल्सो इन द टॉप रैंक होल्डर. तो ये एक अपने आप में ऐसा डिबेट है जिसमें बैठकर हम बहुत लंबे समय तक बात कर सकते हैं. बट आई थिंक आई हैव कम्युनिकेटेड, विदाउट अ फाउंडेशन यू कैन नॉट प्रोसीड. आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर ही नहीं कर पाओगे टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर अप्रोच ऑफ एग्जामिनेशन. प्रैक्टिस डिसिप्लिन एंड टाइम मैनेजमेंट. मेरे ख्याल से ये जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है
इसको अभी हम थोड़ा सा और हाईलाइट करेंगे. इट इज टाइम मैनेजमेंट दैट शुड बी टेकन इनटू द कोर. अब टाइम मैनेजमेंट का भी अपना कस्टमाइज ऊपर भी है. टाइम मैनेजमेंट इज डेफिनेटली दैट यू हैव टू बी ऑन टाइम व्हेन इट कम्स ऑन टू चार्टिंग आउट योर स्ट्रैटेजी. अब इसमें स्टूडेंट्स पूछते हैं क्या मुझे 12 घंटे पढ़ने चाहिए, क्या मुझे 4 घंटे पढ़ने चाहिए. नाउ कम ऑन, दिस इज योर टॉपिक, दिस इज योर सब्जेक्ट, दिस इज योर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग डिफिकल्टी, जो डिसाइड करेगा ना कि एक टॉपिक मेरा आधे घंटे में भी तैयार हो जाता है और एक टॉपिक मेरे से 4 घंटे में भी तैयार नहीं होता. तो जब आप एक बहुत बड़े सिलेबस की डाइवर्सिटी को प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपका जो टाइम मैनेजमेंट अप्रोच होगा वो भी बहुत क्लियरली कस्टमाइज्ड होना चाहिए. दैट आई एम, इस बार के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट रहा उसमें फिर से यही वाली बात दोबारा आई ना, दैट CSAT वाज अ स्पॉइलर. तो हम में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ये फील करते हैं कि जो क्वालिफाइंग पेपर है CSAT वही हमारे लिए बड़ा मुश्किल क्रिएट कर रहा है. एंड दैट इज द रीजन वी आर अनेबल टू क्वालिफाई प्रीलिम्स. तो जब टाइम मैनेजमेंट की बात आएगी तो अगर हमारे लिए CSAT सबसे ज्यादा डिफिकल्ट पॉइंट है तो क्या मुझे थोड़ा ज्यादा टाइम CSAT को नहीं देना पड़ेगा. ट्राई टू अंडरस्टैंड इट दैट वे. एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, लर्न फ्रॉम योर फेलियर्स, because failures makes maximum of us feel it's impossible for me, I don't think this is for me. And I always say impossible is very clearly asking you to understand I am possible. आपको अपने आप को इस पॉजिटिव एज में रखना है that this competitive examination is difficult not to crack. Let us face it. हम जब अपने आप को अपने सामने we don't realize our mistakes, you know. आप बोलोगे नहीं जी ऐसा थोड़ी है, हम बहुत समझदार लोग हैं. बिल्कुल है, पर जब हम क्लास में भी ऐसा ही पूछते हैं कि चलो मैप खोलो और मैप खोल के नोटिस करो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, तो कुछ स्टूडेंट्स मुझे बड़ा फनी सा स्माइल देते हैं. एंड देन आई आस्क देम, अच्छा चलो मैप खोले बिना बता दो कि आप इतने दिनों से ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं या आप इतने दिनों से UPSC की तैयारी कर रहे हैं, आप मैप ज्योग्राफी मैपिंग की ये क्लास और वो क्लास कर रहे हो, जरा जल्दी से बता दो तो कि बांग्लादेश के साथ कौन कौन से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की इंटरनेशनल बाउंड्री लगती है, या is there any northeastern state of the country that doesn't have international boundary. आंसर में हो जाते हैं 0, क्योंकि हम पॉइंट टू पॉइंट फोकस ही नहीं करते. आपको पॉइंट समझना क्या है कि आई नीड टू रियलाइज माई लिमिटेशन, आई नीड टू रियलाइज माई स्ट्रेंथ. हम सब ब्लैक एंड व्हाइट हैं. इट इज द टाइम ऑफ ग्रे. यहाँ पर कोई भी एक एब्सोल्यूट व्हाइट और कोई भी एक एब्सोल्यूट ब्लैक नहीं है. कोई भी एक सुपर एफिशिएंट इंडिविजुअल नहीं है और कोई भी एक बुद्धू इंडिविजुअल नहीं है. इट इज लाइक वी ऑल हैव आवर ओन पोटेंशियलिटी एंड स्ट्रेंथ. तो जब तक आप अपने अंदर ये वाली अंडरस्टैंडिंग नहीं लाओगे कि मेरे लिए ये मुश्किल है, उसके लिए ये मुश्किल नहीं था, and that is the reason I need to focus more on this, and that individual, my room partner, my peer group, my friend has to focus on the other. क्या परेशानी है इसमें? जब तक आप इसको इस तरह से चार्ट आउट नहीं करोगे, जो आपका टारगेट है वो आपको आपके रास्ते में हमेशा धुंधला सा ही दिखाई देगा. तो बहुत जरूरी है कि आप ये 6 पॉइंट्स ऑफ द फैक्टर्स है, इनको बहुत प्रोमिनेंटली और या बहुत सिग्निफिकेंट या सिंसियर वे में जस्टिफाई करें. अच्छा, जस्टिफिकेशन के साथ जब हम कहते हैं फेलियर से लर्न करना है या यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट रॉ मटेरियल टू सक्सेस इज फेलियर. फेलियर ही तो मुझे रियलाइज कराता है ना. एंड फेलियर इज नॉट नेसेसरली इन फाइनल एग्जामिनेशन. फेलियर मे बी इन द प्रीलिम्स, failure may be not attaining good marks in the class test or the regular test that you write to judge where are you standing. तो हर failure से आप next step में improve करने की ही तो कोशिश करते हो ना. So you have to justify that every step of learning is basically correlated with learning from the last attempt. It may be successful, it may be partly successful, or it may be an test failure. फेलियर को एक्नॉलेज करने से आपको और ज्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी टू स्टे पॉजिटिव एंड टू टेक मोर कैलकुलेटेड प्रैक्टिकल रिस्क. एंड दैट इज व्हाट आई ऑलवेज एडवाइज.
When I take the reference of these 6 strategies, इसमें एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज अपने दिमाग में रखनी है, हम सबको रखनी है, अपने दिमाग से कोई भी हेजिटेशन जो है ना उसको हटा दीजिएगा। हेजिटेशन इस तरह से हटाना है कि हम इस पर्टिकुलर एरिया से आते हैं, हम इस पर्टिकुलर विलेज से आते हैं, या हम इस पर्टिकुलर एलिट स्कूल या कॉलेज से आते हैं, इसलिए हमारे दिमाग में एक ऐसा माइंडसेट बन जाता है कि they are educationally more capable than me and thus are more having the potency or potentiality to be there. अपने दिमाग से इस तरह की सारी हेजिटेशन हटा दीजिए। ये बिल्कुल ओपन एंडेड क्लियर स्ट्रैटेजी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है। I have got plentiful examples and I'm so proud of all of them. ऐसे humble rural backgrounds के students हैं जो आज की डेट में highly placed bureaucrats हैं। It's all because of their perseverance, never die attitude, calculated risk, taking care of their well-being, and definitely learning from their failure. You have to take that as your inspiration. And once you are done with that, these 6 strategies that you take into account, then you need to justify a very important approach, and that I call the checklist. अब चेकलिस्ट की जब आप बात करते हैं तो आपको सबसे पहले क्या चीज नोटिस करनी चाहिए? आपको सबसे पहले नोटिस करनी चाहिए कि आपकी जो प्रिपरेशन का डायमेंशन है उसका फंडामेंटल्स कहाँ से आता है। आपका जो प्रिपरेशन का डायमेंशन है उसका ओरिएंटेशन कहाँ से आता है। उसका ओरिएंटेशन तो आपके अंदर से आता है, मुझे इस एग्जामिनेशन को क्रैक करना है, आई वॉन्ट टू बी अ ब्यूरोक्रेट, डेफिनेटली यू विल बी। आपको बस सोचना क्या है, आपको बहुत आराम से जस्टिफाई करना है that you are not carried away by the disinformation and deception that is all around us. आपको ये पॉइंट अपने दिमाग में बिल्कुल क्लियर रखना है कि once I have done the homework, once I have decided that this will be my course of action, मुझे वहीं पर एक consistent approach को रखना है। And because I expertise in geography, and let me add this, self-praising कई बार बहुत जरूरी हो जाती है। On the track record of success, and I have just released that, I have got the successful candidates. I believe that every of my students, 10-15 years older, who are now into their adulthood, whether they have cracked this examination or not, and those who have cracked by default have made me more proud. They are a very successful set of individuals in their respective fields, and they have actually made me who I am today. I always very clearly say कि जब मेरा working approach आप देखते हो तो आपको लगता है नहीं, it is not, it is unreal, it doesn't go that way, but mind it goes that way. हम ecology का एक term इस्तेमाल करते हैं अपने लिए। My center has got very high fundamental and realized niche. इतना high है कि teaching से लेकर correction तक आज भी हम ही करते हैं single handedly। और जब हम करते हैं, right now I am running a program, it is CSTP, 1 year का program है। इतना अच्छा response मिला है आप लोगों से कि हमें actually उसको close down करना पड़ेगा admission को। Closing down भी आप लोग सब कहोगे बड़ा unreal है, closing down तो नहीं होता, अगर डिमांड आए तो आप एक लीप से दूसरा लीप लो, बट आई नीड टू टेक केयर ऑफ द पॉइंट दैट आई हैव टू चेक योर पेपर एंड गिव इट बैक टू यू। तो भाई मेरी भी तो एक लिमिटेशन है एज एन इंडिविजुअल व्हेन आई हैव टू गिव यू फीडबैक। जब हम आपके आंसर्स पढ़ रहे हैं, पहला टेस्ट लिखा है आप लोगों ने, आज आप दूसरा लिख रहे हैं, जब हम आपके आंसर पढ़ रहे हैं तो हमें पता है कि आपका कंटेंट आ कहां से रहा है, और आप कंटेंट में इतने पुअर हैं, आप अपने कंटेंट में इतने पुअर हैं कि आपको जो एक जिसको कहते हैं ना कवरिंग पेज, इट्स ओनली द कवर पेज दैट इज गेटिंग चेंज, अंदर का कंटेंट तो वही का वही। तो आप जहां से कंटेंट क्रिएट आउट कर रहे हो, बिकॉज ऑल ऑफ यू आर नॉट माय स्टूडेंट्स एज प्रिपरेशन ऑफ ज्योग्राफी ऑप्शन, आप में से कई लोगों ने खुद तैयारी करी हुई है, कई लोगों ने कहीं और से पढ़ा हुआ है। आई कैन इजिली मेक आउट कि कंटेंट कहां से आ रहा है, और उस कंटेंट में इतनी ज्यादा सैचुरेशन है कि आप कैसे एक्सपेक्ट करोगे एग्जामिनर को कि आपको मार्क्स देंगे। तो इसलिए बहुत स्ट्रांगली इंसिस्ट कर रहे हैं बच्चों, ध्यान से सुनना और समझना। When I try to take up the reference of
book selection is crucial for your step. I say after you have done my classes, you don't require to read any book. So book selection is crucial for your success. किसके लिए? You have decided not to take classes with me. मतलब तब पढ़ो स्टैंडर्ड, हमने लिंक में दे रखा है पूरी बुक्स. एंड माइंड इट, बुक की सिलेक्शन में एनसीईआरटी को कभी भी कॉम्प्रोमाइज मत करना. कई बार बताया हमने, कई बार समझाया, और इस बार उन स्टूडेंट्स ने जिसको इसको थोड़ा सा सीरियसली लिया था, आपने अपने पूरे प्रीलिम्स प्रिपरेशन को पिछले 5 सालों में कौन सा टेक्निक पर फोकस कर दिया था? एलिमिनेशन टेक्निक. हो गया ना इस बार डब्बा गोल एलिमिनेशन टेक्निक का. ट्रेंड ऑफ पेपर ही पूरा बदल गया. और आपने खुद देखा है कि क्वेश्चन जो है वो सीधे के सीधे एनसीईआरटी से हैं. आई डोंट टॉक अबाउट एनी अदर, आई टॉक अबाउट ज्योग्राफी. इंडियन वेजिटेशन का क्वेश्चन तो पूरा का पूरा इंडियन वेजिटेशन के एनसीईआरटी के चैप्टर से. तो रीडिंग को आप ऐसे जस्टिफाई करो, आप क्लासेस की मदद नहीं ले रहे हो तब आप सारी स्टैंडर्ड बुक पढ़िए, कोई चॉइस नहीं है, शॉर्टकट है ही नहीं इस एग्जामिनेशन. अगर आप क्लासेस का सपोर्ट ले रहे हो, मेरी क्लासेस का सपोर्ट ले रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि आपको बुक्स की जरूरत है. इफ आई हैव टू जस्ट टेक अप द रेफरेंस ऑफ दिस, आई हैव रिलीज दिस एंड आई विल बी रिलीजिंग इट फर्दर. ये तो काफी पॉपुलर हो गया, द handwritten notes that I have released in the market. जो स्टूडेंट्स इस बार मेन लिख रहे हैं, they are highly praising it, क्योंकि कंटेंट की कमी है तो डेफिनेटली प्रॉब्लम होता है. तो आप लोगों को यही सजेस्ट करा कि ये हैंड रिटन नोट्स लेंगे, और बाय मंथ ऑफ सितंबर हम थोड़ा सा कंपाइलेशन परव्यू में निकालेंगे हैंड रिटन विद प्रिंटेड स्टडी मटेरियल. तो हम आपको कुछ इस तरीके का नोट्स प्रोवाइड करें. हम अपना पॉइंट प्रूफ करना चाह रहे हैं स्टूडेंट्स, तो बहुत ध्यान से समझेंगे. हमारे नोट्स एक बल्क का बुक नहीं होता, हमारा नोट्स होता है टॉपिक वाइज. इफ आई कैन जस्ट रीड इट, सेंट्रल प्लेस थ्योरी का एक नोट्स आपको अलग मिलता है, अर्बनाइजेशन स्टेटस एंड प्रॉब्लम का नोट्स आपको अलग मिलता है, इट इज बाउंड्री एंड फ्रंटियर्स का नोट्स आपको अलग मिल रहा है. इट्स जस्ट रैंडम टॉपिक्स व्हिच आर देयर, व्हिच हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड वेरी क्लियरली. इंटरनेशनल बाउंड्री अलग गया. You have got geopolitical significance of Indian Ocean अलग. कहने का मतलब क्या? कहने का मतलब ये कि भाई ये नोट्स हमने कहाँ से बनाए? ये नोट्स तो हमने स्टैंडर्ड बुक से देखकर ही बनाए होंगे ना. आप जब अपने स्टडी मटेरियल को स्टैंडर्ड बुक के कंपाइलेशन के साथ ऐड ऑन कर देते हो, तो फिर उसके बाद क्या रिक्वायरमेंट रहेगी? उसके बाद रिक्वायरमेंट रहेगी कि आप उसके साथ जस्टिफिकेशन करें. जस्टिफिकेशन कैसे करो? क्लासेस का सपोर्ट नहीं लिया तो बुक्स पढ़ना है, बुक्स की लिंक दे रखी है नीचे. एनसीईआरटी क्लास पढ़ने के बाद भी चाहिए, छोड़ना नहीं. अब आपको करना क्या है? यू हैव टू प्रिपेयर योर ओन नोट्स. आई वेरी क्लियरली से मेक इट द कंपाइलेशन ऑफ योर ओन. I have been university topper throughout, and I think that is a set criteria of being of certain level of intelligence even today. हम जब स्टूडेंट थे तो हम अपना स्टडी प्लान को हमेशा नोट्स के साथ एसोसिएट करते थे, और पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहे हैं एज सक्सेसफुली सपोर्टिंग स्टूडेंट्स टू क्रैक दिस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन. नोट्स मेकिंग justifies your capability, enhances your capability. अब आपके पास जब नोट्स हैं, हम आपको प्रिंटेड स्टडी मटेरियल, हैंड रिटन नोट्स, क्लास में डिक्टेशन सब दे रहे हैं, तो इन नोट्स का क्या मतलब है? इन नोट्स का मतलब है जो आपको डेली बेसिस पर करना चाहिए, सिर्फ हमारी क्लास के साथ नहीं, प्रिसाइजली हर क्लास के साथ. कि आपने आज के दिन में जो भी कुछ पढ़ा, 3, 4, 5 पेजेस आपने लिखे, आप जरा बैठकर उसको दोबारा रीड करके आपने उन 5 पेजेस में से क्या क्रक्स निकाला, वो बनाओ नोट्स. दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड, एंड यू हैव टू इंटीग्रेट इट विद योर करंट अफेयर्स. भाई ज्योग्राफी तो एक ऐसा सब्जेक्ट है, वो डायनामिक है. ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट में तो आप कहीं से भी करंट अफेयर्स, न्यूज़पेपर रीडिंग एक्सेट्रा को डिलीट आउट कर ही नहीं सकते. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट करंट अफेयर्स, स्टूडेंट्स वेरी क्लियरली से डिफिकल्ट है. आप क्या कर रहे हो? आप हर चीज के शॉर्टकट के लिए भाग रहे हो कि भाई मुझे योजना पढ़ना है तो मुझे योजना क्या सिनॉप्सिस का क्लास चाहिए,
मुझे हिंदू पढ़ना है, यानी मुझे हिंदू की क्लासेस चाहिए। अरे आप अपना खुद का माइंड सेट कैसे डेवलप करोगे? आप ऐसे सोच कर देखो, अगर मुझे 4 पेजेस का कुछ राइटअप दिया गया, उन 4 पेजेस के राइटअप को मैंने पढ़कर अपने हिसाब से कंसाइज किया, कंसाइज करके, जैसे आप बुक रिव्यूज लिखते हैं इन द लिटरेरी रेफरेंसेस, तो अगर मैंने उस बुक को पढ़कर मैंने 4 पेज का अपना सिनॉप्सिस दिया, आप सिर्फ उस सिनॉप्सिस को पढ़ रहे हो, तो क्या आप उस बुक की जस्टिफिकेशन दे पाओगे? कम ऑन, यू कैन नॉट डू इट। न्यूज़पेपर जैसी बेसिक रेफरेंसेस को तो आपको पढ़ना है, इट विल एनहांस योर वोकैबुलरी। हम स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं एग्जामिनेशन में, हमारी लैंग्वेज हे जाती रहती है, पता ही नहीं चलता कि क्या लिख रहे हैं। बाद में जब खुद रीड करते हैं, व्हेन आई रिटर्न बैक द आंसर शीट, आई रिटर्न बैक आंसर शीट टू एवरी स्टूडेंट माई सेल्फ, और जब हम रिटर्न बैक करते हैं आफ्टर चेकिंग इट, हम बताते हैं कि देखो जरा इस लाइन की मीनिंग पढ़कर बताओ। ओ, क्योंकि व्हेन यू आर इन द पेस ऑफ राइटिंग, यू आर इन द रश ऑफ राइटिंग, मुझे टाइम में खत्म करना है, आप सोचते नहीं, आप सोच नहीं पाते, बिकॉज यू आर नॉट इन द प्रैक्टिस। अब उसमें क्या होता है? उसमें होता यह है कि आपका लैंग्वेज जा रहा है हेवे, यू आर नॉट इन द पोजिशन ऑफ रिकॉग्नाइजिंग कि मैं जो कम्युनिकेट करना चाह रहा हूं या चाह रही हूं, वो तो मैं कर ही नहीं पा रही। आई एम नॉट कम्युनिकेटिंग, मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है बट मेरा वर्ड का सिलेक्शन गलत जा रहा है। अरे, रीडिंग न्यूज़पेपर इज गिविंग यू सो मेनी बेनिफिट्स, इट इंक्रीजेस योर वोकैबुलरी, it enhances the way you construct out your statement, it reduces the chances of you committing spelling mistake, grammatical mistakes in examination. और नोट्स जब बनाओगे, जैसे आपने आज क्लास में पढ़ा, उसका कंपाइलेशन किया, तो ये हुआ डायमेंशन 1 ऑफ नोट्स। और जब आप रिवीजन साइकिल में आते हैं दोबारा, तब आप जो नोट्स बनाते हो, आप क्या करते हो, उसको न्यूज़पेपर या करंट टॉपिक्स के साथ एसोसिएट करते हैं। हम हमेशा एक टर्म का इस्तेमाल करते हैं, उसमें यहाँ लिखते हैं, I always take reference of this, micro knowledge of topics. आपके जनरल स्टडीज में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, आपके ऑप्शनल में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, अगर आपको उन टॉपिक्स की नॉलेज ही नहीं है, तो आप उनको न्यूज़पेपर से रिलेट नहीं कर पाएंगे, आप उसको कंटेम्पररी सोर्सेस से रिलेट नहीं कर पाएंगे। So my banner definitely reads a geographical approach, but I want all of us to understand कि reading newspaper or coming across certain news item, whether I have decided to be my relevant case study or not, will be applicable when while reading it, I'm making sense कि भाई ये तो मेरी इस topic के साथ relate कर रहा है, that this is the example that I can write in this particular domain. Are you understanding? आपके दिमाग में सिलेबस का क्लैरिटी ही नहीं है, तो आपने किसी एक रैंडम न्यूज आइटम को पढ़ लिया, आपकी नॉलेज में आ गया, आप उसको भूल जाओगे। आप जब एग्जामिनेशन हॉल में टाइम फैक्टर में रश कर रहे होगे, वो कहीं ठंडे बक्से में पड़ा हुआ होगा, इट विल बी देयर इन द कोल्ड बॉक्स, इट इज नॉट गोइंग टू कम आउट। आई होप आई एम मेकिंग सेंस। तो जब आप ये अप्रोच ऑफ प्रिपरेशन लेते हैं ना, तो अपने आप को बहुत क्लियरली बताइए कि मुझे बेसिक किताबें पढ़नी है। इसलिए ही बताया कि अपनी ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई को जरा आराम से बैठकर करो, साथ में बेसिक एनसीईआरटीज पढ़ो, न्यूज़पेपर्स पढ़ो, अपने लिए बेस तैयार करो, फाउंडेशन स्ट्रांग होगा, तभी एक स्ट्रांग ब्यूरोक्रेट बनकर काम भी कर पाओगे। अगर आप कोशिश करोगे, सुनने में थोड़ा सा आप लोग कहोगे नहीं ये तो डिस्करेजिंग पॉइंट है, यू आर डिस्करेजिंग अस, आई एम नॉट। You need to understand कि कोई भी हर चीज का it's a point that goes up with the functioning of this entire system. Planetary system ले लो, ecosystem ले लो, political system ले लो, education system ले लो। आपने अपने किंडरगार्टन से इंजीनियरिंग की तैयारी करनी क्यों नहीं शुरू करी? आपने अपने किंडरगार्टन से NEET की तैयारी करनी क्यों नहीं शुरू करी थी? कहीं तो कोई बेस चाहिए, some knowledge of English, some knowledge of your local language, some knowledge of mathematics, some knowledge of science, some knowledge of social science. उसके बाद ही तो आप डिसाइड कर पाए ना कि मेरा फील्ड ऑफ इंटरेस्ट ये है। You have to be very clear, you know, your generation is such that you don't like preaching, but मेरे ख्याल से preaching बहुत important है। अच्छा, इस preaching से एक और बात याद आई, आप जब बुक्स रीडिंग, पहले तीनों पॉइंट को एक बार रिपीट कर देते हैं, बुक्स रीडिंग पर एनसीईआरटी को कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना,
हमारी क्लास के बाद आपको स्टैंडर्ड ज्योग्राफी के बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमने आपको अभी दिखा दिया। बुक लिस्ट हमने दे रखी है लिंक में, आप उसको डाउनलोड करें, सारी किताबें पढ़ो। एनसीईआरटी हर टॉपिक के लिए, हर पार्ट ऑफ योर सिलेबस के लिए मैंडेटरी रीड है। कोई आपको एडवाइस करता है मत पढ़ो तो बहुत गलत कहता है। जीसी लियोन बहुत पॉपुलर टेक्स्ट है, जरूर पढ़िए। आई पर्सनली रिकॉग्नाइज इट एज पिक्टोरियल एनसीईआरटी, और हम बिल्कुल कहते हैं बड़ी अच्छी किताब है, डायग्राम इतने अच्छे क्वालिटी के हैं, लेकिन उसको रीड कर लिया इसलिए एनसीईआरटी रीड नहीं करेंगे, ये वाली गलती मत करना। उसको पढ़ा है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी किताब है, पढ़ो। अच्छा, नोट्स कैसे बनाने हैं? पहला सिनॉप्सिस बनाने की तैयारी करो, सिर्फ पिलर्स टू पोल मत भाग। इसलिए शुरुआत में कहा बी माइंडफुल, डोंट बी माइंडफुल, क्योंकि जब आप एक क्लास एथिक, दूसरा क्लास ऐसे, तीसरा क्लास इकोनॉमिक, चौथा क्लास ऑप्शनल, तो आप कर कुछ नहीं रहे, आप सिर्फ अपने दिमाग में क्लटर भरते जा रहे। और जब 6 महीने डाउन लेन आपके सारी क्लासेस खत्म हो जाएंगे तो वो इतना मजाक बना हुआ होगा कि उसका आउटपुट कुछ नहीं निकलने वाला। तो कोशिश यही करो, टेक स्टेप्स वन बाय वन, अपना कोर्स ऑफ एक्शन चार्ट आउट करो, मुझे किसमें ज्यादा मदद की जरूरत है वहां से शुरुआत करो। टेक क्लासेस एंड व्हाइल टेकिंग क्लासेस डू मैक्सिमम आउट ऑफ इट, लर्न इट। अच्छा, मैक्सिमम आउट ऑफ इट से एक इंपॉर्टेंट बात आई दिमाग में, कोविड का एक पॉजिटिव आउटकम रहा, वी हैव गॉन ऑन टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, and getting onto the online platform, it has become much more easier for us to have that recorded sessions on the different apps and even the other Google Drive, and we can share it. अब मुझसे स्टूडेंट्स कहते हैं मैडम वीडियो वीडियो वीडियो, this center is giving me this many video, this center is giving me that many video, I also give you video। पर एक बार सोच कर बताना, सबसे सोच कर बताना, 2.5 घंटे की क्लास हुई, आपके पास 2.5 घंटे की वीडियो आ गई, छोड़ दो बाकी सारी चीजों, आपके पास 2.5 घंटे की वीडियो आ गई, आपको क्या लगता है कि क्लास करने के बाद आपने वो क्लास अटेंड करी? क्योंकि आपके पोर्टल पर वो वीडियो दोबारा है, आप उस वीडियो को ट्रूली 2.5 घंटे तक दोबारा देखोगे? नो, हम उससे ज्यादा फिर से वही पीट करेंगे। हमारा वर्किंग एथिक्स क्या कहता है? 2.5 घंटे पढ़ लिया, किसी रीजन से मिस किया, तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर वीडियो लेक्चर, देखो कोई प्रॉब्लम नहीं। जब आप 2.5 घंटे पढ़ने के बाद कोई चीज नहीं समझ रहे हैं या आप कहीं अटक रहे हैं, तो आपके लिए ज्यादा फेवरेबल एज क्या है? आई वेरी स्ट्रांगली से आइए हमारे पास, हम समझा रहे हैं, हम उसको दोबारा समझा रहे हैं, हम क्लास में दोबारा रिपीट करने के लिए भी तैयार हैं। तो आई थिंक दैट मेक्स मोर सिग्निफिकेंट फॉर यू। आप भागते हो पिलर को पोस्ट करने के लिए, मेंटरशिप मेंटरशिप मेंटरशिप, हु इज गिविंग यू मेंटरशिप? जज करा है स्पेशलाइजेशन, बिल्कुल ओपन। हमारा जो जिस फील्ड में हम हैं, जिस प्रोफेशन में हम हैं, वो भी पूरा ओपन कॉम्पिटिटिव मार्केट है, कोई भी आओ। लेकिन जब आप किसी से सपोर्ट ले रहे हो तो क्या आप जज नहीं करोगे स्पेशलाइजेशन? अगर कोई ABCD आपको 1 2 3 4 20 वीडियोस प्रोवाइड कर रहा है विद अनइंटरप्टेड अवेलेबिलिटी फॉर यू टू व्यू, तो भाई सी हु इज टीचिंग देयर। टुडे इज A, टुमारो इज B, डे आफ्टर इज C, डे आफ्टर इज B। पिछले 23 सालों से डायरेक्शन एंड नीतू से ही सिनोनिमस। जब हम आपके लिए अवेलेबल हैं फॉर एवरी क्वेरी फॉर यू टू दी आंसर, फॉर एवरी राइट अप दैट यू गिव इट टू मी, फॉर एवरी टेस्ट दैट यू राइट, तो मेरे ख्याल से वीडियो की क्या रिक्वायरमेंट? हमारे दिमाग में अभी तक भी वो CEO टेम्परामेंट नहीं आया। और आप लोग अग्री नहीं करोगे अगर आप हमसे पर्सनली इंटरैक्ट करके हमारे स्टूडेंट नहीं, हम बहुत सिंसियरली बिलीव करते हैं वही कन्वेंशनल मोड पर। वी आर विद द टेक savvy purview, we are all with the gadgets and everything, but when you are in teaching, you have to go up with the teaching ethos. It has to be related to, agree it or not, this is what I work towards. It has to be with Guru and Shishya. It has to be mentorship that is targeting every individual. And this is what makes me different. And that is where I make you different. इसलिए हम हमेशा बोलते हैं अपना पाथ चुनो। I have always been in competition with me. I have never been in competition with anyone. Competition किससे कर रहे हैं? आपको पता है ना कि आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है। आप जो काम हम अपनी पूरी सिंसियरिटी के साथ करेंगे, तो हम भी तो वो सिंसियरिटी अपने स्टूडेंट्स में इनकलकेट करेंगे। और जब वो सिंसियरिटी आ जाएगी, तो आपको कोई नहीं रोक सकता सक्सेस अटेन करने से। हमेशा अपने दिमाग में रखना। तो इस हेडिंग को ज्योग्राफिकल अप्रोच से एक अपना कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के अप्रोच की तरफ चेंज हो गया। And also do take into reference one more thing that I want to talk about.
Create this. Develop this. Always give yourself the reason. Always give yourself the reason of what is your approach or your track. जब आप कहते हैं ना कस्टमाइजेशन ऑफ द थिंग्स, तो उसमें अपने लिए एक चेकलिस्ट बना और इस चेकलिस्ट को बहुत क्लियरली जस्टिफाई करना, बार बार करना कि जिस चीज में मैं हूं, द पॉइंट वेयर आई एम राइट नाउ इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड द सक्सेस comes from combination of talent which can be generated, hard work which has to be implied, and mental fortitude which has to be inculcated. आपको डेली अपने आप को इस चीज को समझाना पड़ेगा. मिरर के सामने खड़े हो जाओ, एक्नॉलेज करो. हमारा दिल और दिमाग जो है ना, उसको एकदम एक छोटे इन्फेंट बच्चे की तरह ट्रीट करना शुरू करो. अपने शीशे के सामने खड़े होकर बोलो, I have proven to be weak at this point. I acknowledge it and I'll work towards improving it. I'm very strong in this particular point and I'll make sure that this particular strength of mine will be utilized for my success in this particular examination. Create out your checklist. This is the best thing that you can do for yourself. And checklist में बहुत सारी चीजें हैं. अपना कॉम्पिटिटिव एज को डेवलप करने के लिए अभी आपको बताया, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को रियलाइज करो. नोट टेकिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन आई थिंक इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको आप कहीं से भी मिस आउट तो कर ही नहीं सकते. एंड व्हेन यू आर ट्राइंग टू टेक अप दिस नोट टेकिंग, आइडेंटिफाइंग इट वेरी क्लियरली विद the approach, how you are going to demarcate out the things working in your favor, not working in your favor. You need to justify that I need to always remain open to adaptation. I have to always remain open to adaptation, as in मुझे क्या क्या चीजें inculcate करनी. ये inculcation किस dimension पर आएगा? ये inculcation आएगा dimension of recognizing मुझे अपने प्रोसेस में कहां पर क्या डाइवर्जन लेना है, मुझे अपनी प्रोसेस में कहां पर क्या मॉडिफिकेशन अटेन करना है. ये सारी चीजें एंड पॉइंट में आपके वर्क को बहुत स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करती. तो अपनी चेकलिस्ट में वीकनेसेस और स्ट्रेंथ को बार बार एक्नॉलेज करिए. और स्ट्रेंथ को हम एक टॉपिक पढ़ते हैं ना रीजनल ज्योग्राफी में. रीजनल ज्योग्राफी में कहते हैं प्लान करो, आफ्टर प्लानिंग इम्प्लीमेंट इट, आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग इवैल्यूएट इट एंड मॉनिटर इट. तो भाई एक बात बताओ, चारों में से किसी भी एक चीज को छोड़ दिया तो आपकी प्रिपरेशन तो अधूरी रह गई ना. आपने कोई चीज प्लान करी है तो प्लान करने के बाद उसको इम्प्लीमेंट भी तो करोगे, और इम्प्लीमेंट करके तो छोड़ नहीं सकते. तो क्या करना चाहिए? इम्प्लीमेंट करने के बाद इवैल्यूएट करो, खुद से करो, अपने पीयर ग्रुप से करो कि भाई जिस कोर्स ऑफ एक्शन में मैं जा रहा हूं या जा रही हूं, इज इट गोइंग फाइन. एंड द बेस्ट थिंग फॉर यू टू डू इज दैट यू कैन टेक अप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. बहुत अच्छा ट्रैक है या बहुत अच्छा गोल पोस्ट है ना. आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पिकअप किया, आपने उनको जस्टिफाई किया. भाई मेरा आई प्रिपेयर्ड अ टॉपिक, whether it was for general studies or it was for optional, and as I prepared it, I'm taking previous year question, multiple choice questions of prelims ले लीजिए, general studies के main के question लीजिए, solve कीजिए. आपने कोई भी टॉपिक प्रिपेयर करा, सॉल्व करिए. क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है, आप आंसर लिख पा रहे हो. अगर आप लिख रहे हो तो who is saying that you are going wrong? You are going absolutely right. अपने दिमाग में ये चीज हमेशा रखेंगे that you are required to be at that kind of frame, mental, emotional, physical, intellectual, कि आपको अडेप्टिव होने से कोई ना रोके और आपकी वीकनेसेस को कोई आपके अगेंस्ट इस्तेमाल ना कर सके. बी दैट फ्लेक्सिबल कि आपको एक पाइपलाइन में घुसने के लिए बोला जाए तो वहां भी घुस जाओगे. बी दैट फ्लेक्सिबल कि आपको एक पूरा फुल फ्लेजेड बिग टनल भी मिला तो आप वहां पर भी चले जाओ. फ्लेक्सिबिलिटी कम्स विद बीइंग अडेप्टिव.
Flexibility comes up with being resilient. और हमेशा याद रखना, confidence is the name of the game. आपने जब अपना strategy decide कर लिया, आपने अपना course of action decide कर लिया, तो सोचो ना भाई, जब हम आपसे अलग हैं तो हमारा वर्क एक्शन या हमारा काम करने का तरीका आपसे तो अलग होगा ही। आपको लगेगा कि मेरा तरीका गलत है, मुझे लगेगा कि आपका तरीका गलत है, बट वो मेरे लिए सबसे सही है, वो आपके लिए सबसे सही है। तो क्यों किसी की जजमेंट से हमें डेविएट होना है? आई नीड टू बी वेरी कॉन्फिडेंट एंड आई रिपीट दिस। बहुत अच्छा स्टेटमेंट बोला अभी हमने। कॉन्फिडेंस इज द नेम ऑफ द गेम। बी कॉन्फिडेंट ऑफ व्हाट यू हैव डिसाइडेड। एंड bottom line, punch line, the individual who is well informed is always confident. Confidence आपका attitude है। Confidence तभी आता है जब आपके पास knowledge है। Confidence तभी आता है जब आप aware individual हैं। तो take your determined course of action. Once you have taken, be dedicated to it. Never lose out on your direction and always try to remind yourself, ये मेरा goal, मुझे यहाँ पर जाना। I want to close down this session by announcing we are beginning with our new batch from 10th of August, and this batch of geography optional will be beginning with physical geography and economic geography of India. हम जैसे हमेशा कहते हैं, map is integral part of it. अभी भी थोड़ी देर पहले आपको बताया complete notes और class coverage. I precisely take pride in saying I am only teacher who is not missing out on a single topic in the class. टाइम टेकन में भी डिफरेंट, क्योंकि भाई एनर्जी क्राइसिस होगा तो 10 मिनट में भी खत्म हो जाएगा। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी 3 दिन में भी नहीं खत्म होगा। तो टाइम टेकन इज डिफरेंट, बट आई टेक एवरी टॉपिक इन द क्लास। और उसी के रीजन से हमने अपने सिलेबस को डिवाइड किया हुआ। पहले भी हमारे इंटरैक्टिव सेशन में हमने बात की थी। ये बहुत ही गलत है, ये बहुत गलत पॉइंट है कि आप 5.5 महीने के कोर्स में 2 महीने तक जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ाओ और बाकी आगे बढ़ा दो। हम ऐसा काम नहीं करते। तो आपका जो सिलेबस 5.5 से 6 महीने तक जाता है, 20 टॉपिक्स हैं आपके पास। हमने उन टॉपिक्स को पर्पसफुली 5 ईच में डिवाइड किया है, एंड आई कॉल इट मॉड्यूल। द डिवीजन दैट आई हैव गिवन इज वेरी क्लियरली 10th अगस्त से जिससे हम शुरू करेंगे, दैट इज फिजिकल ज्योग्राफी, इंडिया एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी। उसके बाद वी विल बी गेटिंग ऑन टू द रेफरेंस ऑफ द नेक्स्ट ब्लॉक, दैट विल बी फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड, जहां वो जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी सब आएंगे। उसके बाद ह्यूमन ज्योग्राफी वर्ल्ड एंड देन ह्यूमन ज्योग्राफी इंडिया। दैट इज द लास्ट 5 टॉपिक्स ऑफ पेपर 2। इससे फायदा क्या होता है? इससे फायदा ये होता है कि हम अपने आप को किसी भी तरह का कोई एक्सक्यूज नहीं देते कि ये टॉपिक यहाँ हो गया तो यहाँ छोड़ दो। दूसरा, इट गिव्स यू द क्लैरिटी अबाउट एवरी टॉपिक दैट यू हैव टू कवर। आप किसी भी टॉपिक को माइक्रोस्कोपिक परव्यू में नोटिस करते हैं, उसके कंटेंट के बारे में सोचते हैं। So and be very clear कि कोई लॉजिक नहीं है कि सिलेबस को आपको इंडिया फिजिकल से शुरू करना चाहिए या जियोमॉर्फोलॉजी से शुरू करना चाहिए तभी आपका सक्सेसफुल अंडरस्टैंडिंग होगा। नहीं, जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की रिक्वायरमेंट बदलेगी, स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ेगी। हम ही थे जो हमेशा सिलेबस फिजिकल ज्योग्राफी से शुरू करते थे आज से 20 साल पहले। उसके बाद हम ही थे जिन्होंने पेपर 1 और 2 में स्विंगिंग करना शुरू किया कि एग्रीकल्चर वर्ल्ड पढ़ लिया, चलो अब एग्रीकल्चर इंडिया पढ़ते। अब हम ही हैं जो सिलेबस को 4 मॉड्यूल में डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि भाई जैसा चैलेंज चेंज होगा, स्ट्रैटेजी टू फेस इट तो चेंज करना ही पड़ेगा। सो आई एम वेरी क्लियर एंड बी अश्योर्ड, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस पॉइंट से क्लास में एंट्री करते, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सिलेबस इज वेरी क्लियरली चार्टेड। क्योंकि नेचर ऑफ क्वेश्चन इज 2 टाइप्स, डायरेक्ट एक टॉपिक कवर करा, यू आर इन द पोजीशन ऑफ सॉल्विंग। एक ओवरलैपिंग, वो तो आप इन एनी केस तब तक नहीं कर पाओगे जब तक आपका पूरा सिलेबस कवर नहीं हो, कहीं प्रॉब्लम। सो गेट ओवर दैट एंड ऑल्सो जस्ट फ्रॉम द लाइन्स ऑफ very successful, and I thank all of you for having faith in me. I have never been at a disappointing edge to any of my students. I promise I'll not be. I'm talking about CSAT, and similarly on a very strong requirement, demand, request. I've also planned to begin with the map session, very different from what I have been taking so far. It will be more focused with the individual regions one by one. And it is totally complimentary, free mapping classes. You are just required to fill up a form. Any other information you can certainly do that. So I
close it down here. I think that this session was somewhere very helpful to all of us to clear all the doubts that we are largely surrounded by. And it is going to give you very clear reference. It is going to give you very clear approach and ideology of how to go about with your strategy towards civil services preparation. Bye-bye from this.